God. We are in the 12th day of Daniel fasting and prayer. ईश्वर की स्तुति हो, 12वां दिन पहुंच चुके हैं डैनियल फास्टिंग प्रार्थना में. And we are hearing a lot of great testimony, and personally we are so blessed. We can see, we can hear, we can experience God in a mighty, mighty way. और हम बहुत सारे गवाहियों को सुन रहे, खुद हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे परमेश्वर की अच्छाइयों को भी अनुभव कर रहे हैं. I want to teach you today that there is a spiritual power against whom we are fighting, and that is Daniel prayer and fasting. और आज मैं आपको कुछ आत्मिक सिद्धांतों को सिखाना चाहता हूँ कि जब हम इस डैनियल फास्टिंग प्रार्थना में जब हम मध्यस्तर करते, आत्मिक युद्ध करते, वो कौन से नीतियों को हमें अपनाना चाहिए. And Daniel prayed for 21 days, and in the Bible it's mentioned, ultimately at the completion of his 21st day, the angel comes and he said, Daniel, your prayer was answered on the day first, but the prince of Persia was stopping me to come to you, bringing the answer of your prayer. और हम जानते हैं डैनियल फास्टिंग प्रार्थना में 21 दिन में डैनियल ने प्रार्थना किया, और फिर माइकल एंजल उसके पास आता और कहता है कि फारस का राजा उसे रोके हुए था 21 दिन के लिए, और अब उसके उत्तर को उस तक पहुंचा पाया है. So this day I will teach you, and if you learn the strategies, the ways to fight the spiritual battles, then you would see power, you will see victory through the prayer. अगर आप इन सिद्धांतों को सीख पाए कि किस प्रकार से आत्मिक युद्ध करना है, तब आप सामर्थ देखेंगे अपनी प्रार्थनाओं में. Because we are not wrestling with people, individual, community, clan, but we are fighting battles against the unseen rulers and principalities in the high places. That's what the book of Ephesians talks about. हम किसी मनुष्य से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम अदृश्य शक्तियों से लड़ रहे हैं, हम प्रधानतर हाकिमों से लड़ रहे हैं. So I'm going to talk about 4 characters and 4 contexts in the Bible, and through their life and situation I will teach you, and through the ways that they have prayed and the life they have led and the victory they have seen, this is what you and I need to follow, the same principles and strategies. मैं बाइबल से 4 चरित्रों के बारे बताऊंगा, और इन 4 चरित्रों के जीवन से हम सीखेंगे आत्मिक युद्ध करना. The first पहला character that I'm going to talk about is from the life of Daniel. और पहला मैं डैनियल के जीवन से सिखाऊंगा आपको. If you read Daniel chapter 1 and verse 8, it clearly says that Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े. परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी. The first thing that you and I need to learn out of this context, that Daniel was determined not to defile. और इस अध्याय से हम ये सीखते हैं कि डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा. Whereas he was given the choicest food, the wine and all the luxury, but he said no. उन्हें बहुत स्वादिष्ट सर्वोत्तम राजस्य भोजन दिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इन्हें छूऊंगा भी नहीं. So my friends, I want to tell you, you have to be determined in your walk with Christ. You have to be determined each day, each moment of your life not to defile your life. और आपको अपने मन में ये ठान लेना है प्रत्येक दिन के रोजमर्रा के जीवन में कि आप अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे. The second thing that I'm going to talk about is commitment. और दूसरा चीज जो आपको समझना है वो है समर्पण. Daniel chapter 3 verse 17 and 18. और डैनियल का 17 और 18 में हम देखते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है. वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है. परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे. And you know the friends of Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego, and their commitment unto God.
और डैनियल के जो 3 मित्र थे, शद्राक, मशाक और अबेदनगो, उनके समर्पण को हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं। There are many a times, many people live a compromised life. और बहुत सारे लोग अपने जीवन में समझौता भरे जीवन यापन करते हैं। When these 3 friends had come to a pagan land and they were compelled to bow before the golden statue, and they said, no, we are not going to bow before this golden statue no matter what comes in our lives. और इन्होंने वो मूर्ति के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम उस मूर्त के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। And you know the story, they were thrown into the furnace of fire. और आप ये कहानी को जानते हैं कि उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया था, But the Lord saved them. लेकिन ईश्वर ने उन्हें बचाया। So you have to stand in your commitment. इसलिए आपको आपके समर्पण में खड़ा होना है। If you're not standing on your commitment, you cannot pray against these principalities and these unseen forces that is standing against you. और अगर आप समर्पण में नहीं खड़े होंगे तो इन अंधकार की शक्तियों से आप लड़ नहीं पाएंगे, इनका सामना नहीं कर पाएंगे। The third thing that we learn from Daniel's life, that he was a very disciplined life. और तीसरा चीज हम डैनियल के जीवन से सीखते हैं कि वो बहुत ही अनुशासित जीवन जीते थे। Daniel chapter 6 and verse 10. और डैनियल का 6 का 10 हम देखते हैं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। That was his practice, that was his habit, to pray 3 times in a day. ये उसके जीवन का अनुशासन था, उसका जीवन जीने का तरीका था कि दिन में 3 बार निरंतर वो प्रार्थना किया करता था। And give thanks to his creator. अपने परमेश्वर को वो महिमा देते थे। Many a times when things goes good, we forget God. बहुत बार जब चीजें अच्छा होने लगता है परमेश्वर को भूल जाते हैं। When things go bad, we get discouraged. जब चीजें खराब जाती हैं हम निरुत्साह हो जाते हैं। But for Daniel, it didn't matter whether things were good or bad, whether things were in his favor or things was against him. But he was a man in his knees, and he was disciplined man, and he kept on praying, even despite of knowing that there was a law that was passed in his country, and he knew that he won't be able to follow that law. But still he came and he thanked and he prayed. डैनियल बहुत ही अनुशासित व्यक्ति था, परमेश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति था। जब उसके उस देश में वो कानून लागू हुआ, वो जानता था उस कानून का वो पालन नहीं कर पाएगा, उसके बावजूद भी वो जानता था कि उसे मृत्यु आज्ञा मिलेगी, फिर भी उसने अपने सिर को मूर्ति के सामने झुकाया नहीं और वो समर्पण में अडिग खड़ा रहा। So how's our discipline? How's your discipline? आपका अनुशासित जीवन कैसा है? 2 days is okay, 3rd day little shaky, and the 4th day it becomes weak. 2 दिन अच्छा चलते हैं, तीसरा दिन हिल जाता, चौथा दिन गिर जाते हैं। Discipline is the key and is a must, my friends. और अनुशासन चाबी है और ये अनिवार्य है। Each day, every moment, we have to keep doing what we have called by God to do. प्रत्येक दिन हमें उन सारी चीजों को करना है जिन चीजों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Our circumstances doesn't determine who God is, but our conviction tells us who God is. हमारी स्थिति नहीं बताता कि परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर की महिमा दिखाता कि हमारा खुदा कौन है। Amen. Amen. And then the 4th thing, that Daniel was a man of character. और चौथा चीज जो हम देखते हैं कि डैनियल एक चरित्र और गुणों वाला व्यक्ति था। Without character, you cannot fight this battle. बिना अच्छे चरित्र का आप ये युद्ध नीतियों को लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। Daniel chapter 6 and verse 4 talks about it. डैनियल 6 का 4 इन बातों को कहता है। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। Amen. The conspirators will come to conspire. षड्यंत्रकारी आएंगे षड्यंत्र करने। The fault finders will come to find fault. और जो दोष लगाने वाले वो आएंगे दोष लगाने। But if you are with Christ with a character,
अगर आप प्रभु के संग उसके चरित्र में गठित किए गए हैं, if you are faithful unto God, अगर आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, if you are responsible with every job that has been committed unto you by God, और हर वो जो कार्य पिता ने आपको समर्पित किया उसके प्रति अगर आप विश्वास योग्य ठहरे, and if you're completely trustworthy, अगर आप संपूर्ण रीति से विश्वास योग्य हैं, I tell you, the devil will pull the hair from his head. और जब आप इतना समर्पण दिखाएंगे, शैतान अपने बालों को खुद खींचने आरंभ करेगा, And he would not know how to grip you, how to find fault with you. और तब वो आप पे दोष लगा नहीं पाएगा, आपके विरुद्ध मिथ्या षड्यंत्र खंड नहीं पाएगा। How are you living? आप कैसे जी रहे Many हैं? people pray, but they don't see power in that prayer बहुत जन प्रार्थना करते लेकिन अपनी प्रार्थना में सामर्थ नहीं देखते, because they don't live a committed life. क्योंकि वो समर्पित जीवन जीते नहीं, Because they are not determined to follow Christ no matter what comes in their life. क्योंकि वो अपने जीवन में उनका संकल्प दुर्बल है कि वो ऐसा जीवन जीते नहीं कि कुछ भी हो जाए फिर भी मैं समर्पित ही रहूंगा प्रभु यीशु के प्रति। And the devil knows your weak point, and the devil can go and can exploit your weak point. और शैतान आपके दुर्बल स्थानों को जानता है और वो आसानी से आपके दुर्बल बातों का फायदा उठाता है। So this evening, make up your mind आज शाम को अपने मन में ये ठान ले that Lord, no matter what comes, I will be determined not to defile myself. और कुछ भी क्यों ना हो जाए पिता, मैं अपने मन को निश्चित करता कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। Lord, I will be committed unto you till the last breath of my life. I will not accept any compromise. और जीवन के अंतिम सांस तक पिता मैं समर्पित रहूंगा, मैं समझौता वाला जीवन नहीं जीऊंगा, I will live a disciplined life. मैं एक अनुशासित जीवन जीऊंगा, I will live a life that demonstrates your character. मैं ऐसा जीवन जीऊंगा जहाँ पे आपका चरित्र दिखता हो, And I will pray with burden. और मैं बोझ के संग प्रार्थना Daniel करूंगा। chapter 10 verse 2 and 3 says that Daniel prayed for 21 days, and during this 21 days he was mourning, he was praying with a great burden. Can you do that? और यहाँ डैनियल के 10 अध्याय में लिखा 21 दिन तक डैनियल ने निरंतर प्रार्थना किया, वो दुखी था, विलाप कर रहा था, वो निरंतर प्रार्थना कर रहा था। क्या ये 21 दिनों में उस बोझ के संग, समर्पण के संग क्या प्रार्थना कर सकते हैं? Do you have that burden? क्या ये बोझ है आपके अंदर? Do you have the burden for the perishing souls? क्या आपके अंदर बोझ है वो नाशवान आत्माओं के लिए? Because of Daniel's prayer, 70 years of impeachment was reduced only to 7 years. और क्या आप जानते हैं डैनियल की प्रार्थना के कारण जो 70 वर्ष का जो महाक्लेश इस पृथ्वी में आने वाला था वो 7 वर्ष में परिवर्तित हो गया। People are very caught up with their own desire, needs and their लोग अपने ही इच्छाओं में, भावनाओं में बिल्कुल लिप्त हैं और खोए हुए हैं। when they come to church, they don't come to know what is your will, but they come to say, God, this is what I need. Come out of this mindset and this kind of lifestyle. और जब वो चर्च आते हैं वो अपनी ही जरूरतों को लेकर आते हैं, वो ये नहीं कहते खुदा आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है जिसके अनुसार मैं प्रार्थना करूं। The second character this evening that I'm going to talk about is the life of King Jehoshaphat. और जो दूसरा चरित्र मैं कहना चाहूंगा वो है जोशफात का जीवन। You know, 2 Chronicles chapter 20 and verse 3 says that Jehoshaphat was terrified by the news and begged the Lord for guidance. He was also ordered everyone in Judah to begin fasting. तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। Brothers and sisters, Jehoshaphat sought the face of God. जोशफात ने परमेश्वर के का वो खोजी बना। The context of this passage says that there was a vast army that came to fight against Jehoshaphat. बहुत बड़ा सेना का दल था जो जोशफात से लड़ने आया। And in front of this vast army, Jehoshaphat's troop was like peanuts, it's like nothing. और इतने बड़े सेना के सामने जोशफात एक छोटे से मूंगफली के दाने के समान खड़ा था। But Jehoshaphat trusted God. लेकिन जोशफात ईश्वर पे भरोसा किया। And he went to the Lord and he said, God, lead me, guide me, tell me.
और वो ईश्वर के पास गया और उसने कहा, पिता मेरी अगुवाई कीजिए, मुझसे बातें करे, मुझे आप रास्ता दिखाइए। How many times do you fast? आप कितनी बार उपवास करते How हैं? many times you went to the Lord and said, God, please tell me, what is your will in this matter? कितनी बार आप ईश्वर के पास गए और कहेंगे, पिता बताइए आपकी इच्छा क्या है इन सारे विषयों में? Jehoshaphat went to the Lord first to seek his will. और यहोशाफात ईश्वर के पास गए उसकी इच्छा की खोज करने को। There are so many people, when they mess up in life, they accuse God. बहुत सारे लोग हैं जब उनका जीवन में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो ईश्वर को दोष लगाने लगते हैं। When challenges comes, they said, God, where are you? I think you don't care for me. और जब चुनौतियां बढ़ जाती है वो ईश्वर से कहते हैं, पिता आप कहाँ हैं? आप तो मेरी चिंता ही नहीं करते हैं। But today the Lord is asking, have you sought my will? आज खुदा आपसे पूछा, क्या तू मेरी इच्छा का खोजी हो? Did you seek me? क्या तुमने मुझे खोजा है? Did you ask me? क्या तुमने मुझे मांगा है? If not, अगर नहीं, go to the Lord. आज ईश्वर के पास जाए। And the second thing that we learn from Jehoshaphat's life, और दूसरी बात जो हम यहोशाफात के जीवन से सीखते हैं, there was a complete dependency on God. वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर था। 100% dependency. 100% निर्भर था। And he kept on acknowledging him. और वो निरंतर परमेश्वर को सहराता था, उसका सम्मान देते थे। How many times have you depended 100%? कितने बार आप 100% परमेश्वर पर निर्भर करते हैं? Bible says in Proverbs, lean not to your own understanding, acknowledge him, trust him, and he will make your path straight. और बाइबल साफ कहता है, अपने समझदारी का सहारा ना लेना वरन परमेश्वर पे भरोसा करना। 2 Chronicles chapter 20 verse 6 to 9. दूसरा इतिहास 20:6-9 हम पढ़ते हैं। यह कहने लगा कि हे मेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सके? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र इब्राहिम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनकर कहा कि यदि तलवार या मरी अथवा अकाल व और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। Amen. Amen. You will hear our cry and you will rescue us. पिता आप हमारे पुकार को सुनेंगे और आप अपने आके छुड़ा लेंगे। That is the love of the Father. ये पिता का प्रेम है। That's the reason Jesus Christ came to this world. यही वो कारण है कि यीशु मसीह पृथ्वी में आए। Today, if you're in midst of a challenging time, अगर आज आप एक चुनौती भरी स्थिति में घिरे हुए हैं, if your problem is so big and you're saying, God, where are you? अगर आपकी समस्या बड़ी है, आप कह रहे ईश्वर आप है कहाँ? I tell you, God is just by your side, यीशु बिल्कुल आपके बगल में खड़े हैं, but you're not able to see him. लेकिन आप उसे देख नहीं पा You know रहे। why? आपको पता है क्यों? Because you don't know him. आप उन्हें जानते नहीं। You think that you know him, आप सोचते कि आप उन्हें जानते हैं, but actually you don't. लेकिन वास्तविक में आप उन्हें नहीं जानते हैं। If you would have known him, अगर आप उन्हें सचमुच जानते, like Daniel, you would have been determined not to defile yourself. आप डैनियल के समान निश्चित हो जाते, आप ठान लेते कि मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। My friends, the battle is God's. ये युद्ध ईश्वर का है। Whatever challenges, whatever battles, whatever problems that you are facing, it is not yours, it is God's. आप जो भी स्थिति में क्यों ना हो, वो परमेश्वर का नियंत्रण में है वो स्थिति। ये युद्ध आपका नहीं, ये युद्ध स्वयं खुदा का युद्ध है। So don't think that is your battle. आप ये ना सोचे ये आपका युद्ध है, This is God's battle. ये ईश्वर का युद्ध है। And I tell you, it is a won battle. ये जीता हुआ युद्ध है। It is not 50-50. ये 50% जीता हुआ, आधा 50% हारा हुआ युद्ध नहीं है। God
wants to see you like His own son and daughters. और परमेश्वर सचमुच आपको अपना बेटा बेटी के रूप में देखना चाहते हैं। I strongly feel that God is speaking to many of you today. और मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर बहुतों से बातें कर रहे God हैं। is speaking to you to stand in your commitment, no longer in your compromise. और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम समर्पण में खड़े हो जाओ, समझौता में नहीं। Be disciplined, be in your knees and pray every day. अनुशासित जीवन जिए और अपने घुटनों में आके प्रार्थना करें। Do not come with any excuse that I could not do this because this was an excuse. Throw away all your excuses and come to the Lord and praise Him and thank Him and stand in your disciplined life. और बहाना ना दे, बल्कि अपने घुटनों में आकर निरंतर प्रार्थना करें। Be faithful unto your commitment. अपने समर्पण के प्रति विश्वास योग्य बने Be a रहें। complete trustworthy person. परमेश्वर का बिल्कुल विश्वास योग्य व्यक्ति बने। Be responsible with all the work that God has given. हर वो दायित्व जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसके प्रति दायित्वशील बने। Look out of your life. Look around अपने चारों जीवन की ओर आप देखें and say, God, tell me what should I pray for. और कहें कि पिता मैं किस विषय के लिए There are so प्रार्थना many करूं? people who are perishing. इतने सारे लोग मर रहे हैं। Maybe your neighbors. आपके पड़ोसी, Maybe शायद somebody in your family who is आपके not yet परिवार में saved. शायद किसी को उद्धार की जरूरत हो। So many relatives, इतने सारे colleagues. रिश्तेदार, कोलीग्स, What are you doing? आप क्या कर रहे Come हैं? out of your selfishness. अपने स्वार्थीपना से बाहर निकल। Come out of your me, I and myself mindset. मैं मेरा इन सारे मानसिक दशा से बाहर निकले। Pray for your nation. अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना Pray for करें। your administration of your city. अपने शहर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करें। Ask God to come. ईश्वर से आमंत्रण करें कि आपके शहर में वो आ जाए। God will help you. ईश्वर आपकी मदद करेंगे। Seek Him always. Seek Him first in your life. आप हमेशा उसकी खोजी बने रहें Ask Him, God, what is your will, God? और खुदा से कहे पिता आपकी इच्छा क्या है? And be completely dependent on Him, knowing that this is not your battle. पूरी तरह God's से प्रभु battle. के प्रति समर्पित हो जाए, क्योंकि ये आपका युद्ध नहीं उसका युद्ध है। उसके प्रति आप पूरा भरोसा करें। Acknowledge Him always. हमेशा उसे And सहराए He's a good God. और वो अच्छा खुदा है। Let's close our eyes and we will pray now. And if these are the things that you need to check in your life today, go to the Lord and ask God forgiveness. और अगर इन सारे विषयों में आपने गलत किया है, इस जगह में पिता से क्षमा मांगे, इन सारे एरिया सुधारे अपने जीवन में। Be restored with God. ईश्वर पुनः स्थापित हो जाए। That's what God is asking you to be. और यही खुदा कह रहे हैं आपसे Be करने के one लिए। with Christ. ईश्वर के संग एक हो जाए। And I tell you, मैं आपसे कहता you will हूँ get power. आपको पावर You will get मिलेगा, strength. शक्ति You'll मिलेगा, get victory. विजय मिलेगा। You will see mightiness of God आप पिता की महानता को in your देखेंगे, family, आपके परिवार in your में, neighborhood, आपके पड़ोसी in में, your businesses, आपके बिजनेस in में, your marriage, आपके विवाह in में, your home, आपके घर में, everywhere. हर जगह। Gracious God, we come to your presence this evening, God. पिता हम इस समय आपके उपस्थिति में आते हैं And God, we just pray that God open their heart, open their eyes, renew their life and commitments unto you, God. पिता के मन को खोलिए, उनके समर्पण को पुनः स्थापित करे, Restore things into their lives. उनके जीवन में चीजों का निर्माण करे। We come in the name of Jesus हम Christ. यीशु के नाम से आते And हैं we come against every forces, every lie, every challenges, every attacks and entanglement of the enemy. We break you, we bind you, we seize you Yes. in the name of Jesus. यस, यीशु के नाम से सारे बंधन, जकड़न, शैतान का कार्य, उसकी षड्यंत्र को हम तोड़ देते यीशु नाम से। Lord, open the hearts of your people, God. अपने लोगों के हृदय को खोले खुदा, Renew their commitment, Master. उनके समर्पण को नया बनाए। God, more than anything, God, you are drawing your sons and daughters unto you. पिता आप अपने बेटे और बेटी को खींच रहे हैं Because आपकी you ओर, are coming to take us, God. क्योंकि आप आ रहे बहुत जल्द हमें ले जाने। So Lord, help us to be strong in you, पिता हमें मजबूत होने में मदद करे, that we can stand in your name. ताकि हम आपके नाम से खड़े हो सके And we put the devil and the demonic forces under our feet and और सारी crush दुष्ट the head. आत्माओं को अपने पैर के नीचे कुचल सके यीशु नाम And से, we will see victory. और हम विजय प्राप्त कर सके। And I bless your people.
God. पिता मैं तेरे लोगों को आशीषित करता In हूँ the name of Jesus, यीशु के नाम से। let your name be exalted. आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, Testimonies would be raised up. अभी तक गवाहियां खड़ी हो In Jesus' name, यीशु के नाम से। amen. आमीन। God bless you. ईश्वर आपको बहुत आशीष दे, दूसरे तक ये संदेश जरूर पहुंचाए। और जब आप इन आत्मिक नीतियों को सीख रहे हैं कि कैसे युद्ध करना है, आज आपने जो भी सुना ये आपका चरित्र गठन करने वाला वचन था। जब आपका चरित्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा गठित किया जाएगा, शैतान आपके सामने कांपेगा, आपके एक हुक्म से वो भाग जाएगा। प्रार्थना में बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और कुछ दिन बाकी है, थामे रहे प्रार्थना वाले जीवन को। ईश्वर को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।